خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں گے۔ واجبات نہ دیے تو ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ لیاقت یونیورسٹی لیب کی سندھ پولیس کو وارننگ۔ عدم ادائیگی پر 300 کیس، 2200 ڈی این اے ٹیسٹ رک گئے۔ 4 کروڑ 20 لاکھ روپے واجب الادا۔ ادائیگی میں تاخیر سے تجزیہ اور بروقت رپورٹس متاثر ہوں گی۔ واجبات کی عدم ادائیگی 300 کیسز میں 2200 ڈی این اے شواہد پر تحقیقات کو بریک لگ گئی۔ لیاقت یونیورسٹی ڈی این اے لیب کی سندھ پولیس کو وارننگ۔ خط سٹی 21 کو موصول۔ بقایا جات کی عدم ادائیگی پر نئے کیسز لینے سے انکار۔ لیب کا موقف ہے کہ 4 کروڑ 20 لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ مارچ 2023 سے دسمبر 2024 تک 7000 ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے۔ جنوری تا جون میں مزید 300 نئے کیسز موصول ہوئے۔ 2200 نمونے فنڈز نہ ہونے پر زیر التوا ہیں۔ پیشگی فیس کے بغیر نئے کیسز قبول نہیں ہوں گے۔ ادائیگی میں تاخیر سے تجزیہ اور بروقت رپورٹس متاثر ہوں گی۔ ادھر کراچی میں زمین لرزے گی، بڑے حادثے کا خدشہ۔ ماہرین نے آئندہ 5 دن اہم قرار دے دیے۔ سی او ارتھ کوئک ریسرچ سینٹر شہباز لغاری کے مطابق 2014 سے 2020 تک کراچی کی زمین 15.7 سینٹی میٹر دھنس چکی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ یہ دھساؤ زلزلوں کو زیادہ خطرناک اور مہلک بنا سکتا ہے۔ میر کیریو کی رپورٹ۔ بجری اور پانی زمین سے نکالنے کے باعث ملیر فالٹ لائن فعال۔ بے ہنگم تعمیرات نے مسائل کو کئی گنا بڑھا دیا۔ کراچی میں زلزلوں کا خدشہ بڑھ گیا۔ ماہرین نے آئندہ 5 دن اہم قرار دے دیے، بڑے دعوے بھی کر ڈالے۔ سی ای او ارتھ کوئک ریسرچ سینٹر شہباز لغاری کی پریس کلب میں پریس کانفرنس پیش گوئی کی کہ شاہ فیصل، لانڈھی اور ملیر میں زیادہ خطرہ ہے۔ رواں سال کراچی میں 50 کے قریب زلزلے آئے۔ ماہرین کے مطابق 2014 سے 2020 تک کراچی کی زمین 15.7 سینٹی میٹر تک دھنس چکی۔ یہ دھساؤ زلزلے کو زیادہ خطرناک اور مہلک بنا سکتا ہے۔ کراچی میں 128 گھنٹوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ جی، کراچی میں مزید ارتھکویک ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اس ٹائم 128 آورس میں ارتھکویک ایکسپیکٹڈ ہے۔ آپ میرے پاس وائس ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ملیر، لانڈی، شاہ فیصل اس ٹائم جو ہم ارتھکویک دیکھ رہے ہیں وہ 4.0 میگنیٹیوڈ پلس کا ارتھکویک ایکسپیکٹڈ ہے، جو کہ کراچی کے میکسیمم ایریا پر محسوس کیا جائے گا۔ دوسری جانب کراچی یونیورسٹی شعبہ ارضیات کے لیکچرر محمد ارسلان کہتے ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی دریافت ہی نہیں ہوئی کہ زلزلے کی پیش گوئی ہو سکے۔ تاہم کراچی میں کم شدت کے زلزلے کا خطرہ ہے، جس میں تعمیرات کے باعث بڑے نقصان کا خدشہ ضرور ہے۔ ہمارے ادارے کچھ ماہ سے اس سلسلے میں الرٹ بھی ہیں۔ ابھی اس وقت تک تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی دریافت نہیں ہوئی ہے کہ وہ اتنے دن پہلے کسی بھی قسم کی ممکنہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ کراچی پچھلے 1-2 مہینے سے جس فریکوینسی سے زلزلے آئے ہیں تو اس کی بنیاد پر ایک یہ پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ کوئی ممکنہ دھکا بھی زلزلہ آ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ کراچی ایک بہت بڑے زلزلے کے زون میں نہیں ہے، اس کا جو ہے کہ درمیانے قسم کے زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن اصل جو نقصانات ہوتے ہیں وہ یہاں پر تعمیرات کے ہیں۔ ماہرین نے بتایا کہ سپارکو اور سروے آف پاکستان کے مطابق 2014 سے 2020 کے درمیان لانڈھی، ملیر، کورنگی اور قائد آباد میں زمین مسلسل بہتی رہی ہے۔ ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ واضح ہوا کہ ہر سال زمین اوسطاً 2.5 سینٹی میٹر تک نیچے جا رہی ہے۔ کیمرامین قدرت اللہ کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ پابندی، گرفتاریاں، مقدمات، کچھ کام نہ آیا۔ شہر میں دھڑلے سے پارکنگ فیس کی وصولی۔ مارکیٹوں اور مالز کے باہر 30 سے 100 روپے فیس وصول کی جا رہی ہے۔ محکمہ سٹی وارڈنز کی مختلف علاقوں میں کارروائی، 3 افراد گرفتار، مقدمہ درج۔ شہریوں کا محفوظ پارکنگ ایریاز بنانے پر زور۔ بعض شہری بلدیہ عظمیٰ کے فیصلے سے بھی لا علم۔ اس حوالے سے شہریوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ مافیاز ہیں یہاں پہ اور کچھ تھوڑی ہے، یہ مافیاز ہے۔ وہ حکومت تو ہے، حکومت نام کی سندھ تو کراچی میں تو اسپیشلی کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں تو ڈفرینٹ مافیاز ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ پارکنگ مافیا ہے۔ احکامات کچھ بھی ہوتے رہے، یہاں 30 روپیز پر بائک جو ہے چارج کر رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں ایک دفعہ پارکنگ کر کے یہاں سے دوبارہ واپس چلا جاؤں پھر دوبارہ آؤں تو یہ پھر دوبارہ 30 روپے لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات سندھ گورنمنٹ نے جو کیا ہے، ہر جگہ پارکنگ کی فیس لی جا رہی ہے، صرف یہاں پہ نہیں، پورے کراچی میں ہر جگہ فیس لی جا رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ کچھ بولتی ہے اور انہی کے ٹھیکیدار ہیں، انہی کے سب لوگ ہیں، سب پوری دنیا جانتی ہے کہ انہی کے سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے پارٹی کے بندوں کو یہ سب ٹھیکے دیے ہوتے ہیں، اس کے بغیر کسی کا مجال نہیں ہے۔ روپے دیہڑی ہے، تم پارکنگ بند کراؤ گے، عوام گاڑی کہاں لگائے گی؟ فٹ بار پہ لگائے گی، فٹ بار پہ گاڑی چوری ہوگی، کون بھرے گا؟ تم لوگ بھرو گے کیا؟
आगे 600 रुपये दिहाड़ी है, बोलोगे तो बंद करना है तो बंद कर दो, भी हम घर जाके बैठ जाते हैं। सब चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर दोबारा यहाँ पे वो कह रहे हैं अलग से पार्किंग दो। मैंने कहा मैं तो नहीं देता था, मैं अभी आ रहा हूँ वापसी, फिर दोबारा पूछता मैं तुम्हारा कौन हो कौन नहीं। बंद होना चाहिए, बंद हो गई हैं आधे से ज़्यादा, लेकिन ये बस बेटे में जिसका लगा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है इनको, अब क्या बोलें। कराची में इंतजामिया की रेट कहीं दिखाई नहीं देती। मुनाफाखोर सरकार पर हावी। चीनी 190 रुपए किलो में फरोख्त। होलसेल और रिटेल सतह पर चीनी महंगे दामों बेची जा रही है। होलसेल कीमत 170, रिटेल 173 रुपए किलो मुकर्रर की। कमिश्नर कराची शहर में सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना करवा सके। घरेलू और सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर बेचने वाले होशियार। चेयरमैन ओगरा के सख्त इक़दामात। गैर कानूनी LPG बाउजर्स भी रडार पर आ गए। ओगरा की गैर कानूनी सिलेंडर्स और बाउजर्स के खिलाफ मुहिम जारी। 3 माह में तकरीबन 600 बाउजर्स ओगरा से रजिस्टर्ड हो चुके। शहरी हादसात से बचें, घरेलू सिलेंडर रजिस्टर सेंटर से ही खरीदें। चेयरमैन ओगरा मंसूर खान की अपील। ओगरा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो बाउजर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की एक मुहिम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ चला रहा है, और पिछले 3 महीनों में तकरीबन कोई 600 के करीब बाउजर्स जो हैं वो अब हमारे पास इनलिस्ट हो गए हैं, रजिस्टर हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके साथ साथ वो तमाम मुकामात के जहाँ पर LPG सिलेंडर्स की फिलिंग होती है और LPG के सिलेंडर्स बेचे जाते हैं, वहाँ पे भी कंप्लाइंस और सेफ्टी के हवाले से हमारी इन्फोर्समेंट टीमें जो हैं वो जा रही हैं। जहाँ ओगरा और ओगरा की इन्फोर्समेंट टीम अपने काम और इक़दामात कर रही है, वहाँ पर आवाम से भी हमारी अपील है कि जब भी वो बाज़ार में जाएं और अपने इस्तेमाल के लिए सिलेंडर ख़रीद रहे हों, चाहे वो घरेलू सार्फिन अपने लिए सिलेंडर ख़रीद रहे हों या सनती सार्फिन अपनी इंडस्ट्रियल या कॉटेज इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ के लिए सिलेंडर ख़रीद रहे हों, तो इस बात का ख्याल रखें कि वो सिलेंडर्स जो हैं वो मयारी हों और वो ओगरा के ऑथोराइज्ड एजेंट और ऑथोराइज्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हों, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जान की नुकसान का अंदेशा है और किसी भी बड़े हादसे का ये चीज़ पेश खेमा हो सकती है। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। बिजली तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर कर ली। वफाक से कराची के शहरियों से इजाफी 50 अरब वसूली का फैसला लेने की अपील। शजरीना मेमन ने कहा कि पावर कंपनियों को प्रीपेड मीटर्स लगाने पर मजबूर किया जाए। प्रीपेड मीटर्स लगने पर यूनिट्स खत्म होने से खुद मीटर बंद हो जाएगा। आजिज़ जमानी की रिपोर्ट। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। बिजली तकसीम कार कंपनियों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बां। मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की जेर सदारत सिंध असेंबली के इजलास हीर सोहो, आमिर सिद्दीकी, शब्बीर कुरैशी और आसिफ मूसा ने अलग अलग करारदातें पेश की, जिनमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को कराची के शहरियों से इजाफी 50 अरब रुपए वसूल करने का फैसला वापस लिया जाए। कराची में बिजली के यूनिट्स की कम से कम हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट्स किया जाए और लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। करारदाद पर बात करते हुए सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वजीर आजम से मुतालबा किया कि पावर कंपनियों को मजबूर किया जाए कि वो प्री हेड मीटर्स लगाएं। यूनिट्स खत्म होने से खुद मीटर बंद हो जाएगा। सर प्रीपेड मीटर में क्या करना है? मेरे घर के बिजली का में मीटर लग गया। जिस तरह आप मोबाइल फोन है ना, आपके पास ये 10 किस्म की मोबाइल की कंपनी है, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास टेलीनॉर है, किसी के पास जोंग है, जो चीजें भी हैं, अगर आप टॉप अप करते हो, अगर आपका कार्ड खत्म हो जाता है तो आपका जो है फोन खत्म। 1000 रुपए का टॉप अप किया, आपका कार्ड खत्म, आपका कनेक्शन खत्म, फैसिलिटी खत्म। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि पहले भी कई करारदादें मंजूर हुई हैं। अगर असेंबली की करारदाद पर अमल नहीं होता तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मुझे एज अ मेंबर ये लगता है कि ये इस असेंबली की हुर्मत पे भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अगर इस ऐवान से कोई करारदाद पास हो रही है और अगर उस करारदाद की अहमियत नहीं है तो फिर हम सब के ऊपर भी एक सवालिया निशान बन जाता है कि हम बैठे हुए क्यों हैं। फिर वक्फा सवालात के दौरान इजलास की सदारत निदा खोड़ो ने की। वजारत खेल
اور नौजवानान की पार्लिमानी सेक्रेटरी साइमा आगा ने मुख्तलिफ अरकान के सवालात के जवाब में कहा कि सिंध से 16 खिलाड़ियों को आलमी मुकाबलों के लिए भेजा गया है। खेलों में खवातीन को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद ने सिंध असेंबली का इजलास जुम्मे की दोपहर तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ आजिज जमाली, सिटी 20। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में सहूलियात का फुकदान, 4 में से 3 एम्बुलेंसेज सालों से खराब, कीमती सामान पर मुबैना तौर पर फरोख्त कर दिया गया। मरीजों को लाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची की 4 में से 3 एम्बुलेंस कई बरस से खराब। अस्पताल की एक ही एम्बुलेंस से मरीजों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। एम्बुलेंसेस का कीमती सामान भी कई बरस कबल मुबैना तौर पर चोरी कर लिया गया था। मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों को शिफ्ट करने में मुश्किलात का सामना। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खराब एम्बुलेंस के बारे में आला हुकाम को आगाह कर दिया है। अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद, पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि 1 अगस्त से 1 लीटर पेट्रोल 9 रुपए तक और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 73 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट। महंगाई से परेशान अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। मुसलसल 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 9 रुपए तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 15 पैसे से कम होके 263 रुपए 8 पैसे का हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 73 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई और मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 284 रुपए 35 पैसे से कम होकर 282 रुपए 62 पैसे का हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत कम होने के भी मुस्बत असरात होंगे। ज़राए का कहना है कि दूसरी जानिब 1 लीटर मट्टी का तेल 3 रुपए 55 पैसे और ज़राअत में इस्तेमाल होने वाला 1 लीटर लाइट डीजल 2 रुपए 33 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का ये भी कहना है कि मंजूरी मिलने के बाद 1 अगस्त 2025 से अगले 15 रोज के लिए कीमतों पर अमल दरामद होगा। सिंध भर की मखदूश और खतरनाक इमारतों के मुतालिक इजलास, 59 इमारतों का असर-ए-नौ सर्वे करने का फैसला। कमेटी के इजलास में पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक होंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि सूबा भर में मखदूश और खतरनाक 740 इमारतों के सर्वे का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जिन 59 इमारतों को मकीनों से खाली करवाया गया है, उनके मुतासरीन की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात के साथ साथ उनकी मुस्तकिल बहाली के लिए आबाद 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट मुरतब करें। आइंदा इजलास में सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के एक रुकन को कमेटी के इजलास में खास तौर पर शिरकत की दावत दी जाए। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने 14 अगस्त से ई चालानिंग सिस्टम को फाल करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम भी शुरू कर दी। तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में। कराची में ड्राइवर हजरात हो जाएं होशियार। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 14 अगस्त से ई चालान सिस्टम हो जाएगा फाल। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी। हुकूमत ये चाह रही है कि देखें कि गवर्नमेंट के जो आपकी एक तो आगे पीछे नंबर प्लेट जो है ना वाज़िया तौर पे होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रूफ की गई है। ठीक है, सर पे आप हेलमेट पहने, लाइसेंस अपने साथ कैरी करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप रखें और एक मुअज़्ज़िज़ माशरे की तरह आप इस तरह रोड पे चलें कि एक डिसिप्लिन माशरा नज़र आए। ठीक है, तो इस पर आप इम्प्लीमेंट करें ताकि आप चालान से भी बचें और एक अच्छा एक हमारा मैसेज भी जाना चाहिए। पुलिस ने शहरियों को मशवरा देते हुए कहा कि सबसे पहले अपनी बाइक या गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं, गवर्नमेंट की जानिब से मंजूर शुदा नंबर प्लेट लगवाएं, रंगीन शीशे लगाने से गुरेज करें, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की जाए, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करके मुअज़्ज़िब शहरी होने का सबूत दें। पे अमल पैरा हैं कि हम भी दुनिया के साथ चलें ताकि एक हमारा एक मैसेज जाना चाहिए आवाम की तरफ से कि हम एक मुअज़्ज़िब माशरा हैं और हम वेल नोन शहरी हैं और हम ट्रैफिक वॉलेटर्स नहीं हैं, हम ट्रैफिक पे अमल पैरा करते हैं। हम इस निज़ाम को हम इंशाल्लाह ऑन एयर हो जाएगा आपका 14 अगस्त से कि भाई अपना गाड़ियों की डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, अपने नाम पे करें, नंबर प्लेट्स अपनी डिसिप्लिन के तहत लगाएं और रूल्स और रेगुलेशन को अख्तियार करते हुए रोड पे डिसिप्लिन से ड्राइविंग करें। शहरियों ने ई चालान सिस्टम के हवाले से मिले जुले ख्यालात का इजहार किया। देखो, अगर कामयाब करनी है तो साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी अपडेट करें, जिस हवाले से कि रोड हमारे अपडेट होने चाहिए, सिग्नल अपडेट होने चाहिए, रोडों पे गाड़ियाँ एक्स्ट्रा पार्क नहीं होनी चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें भी अपडेट होंगी तो हमारी बाइक भी अच्छी लगेगी। भाई हम सीधा जा रहे हैं, गाड़ी लेके भी जा रहे हैं, तो भाई आप रुकेंगे नहीं। सर उम्मीद तो की जा सकती है घर पे पहुँचे, लेकिन उससे पहले दूसरे मसले मसाइल जो हैं वो हल कर लिए जाएँ। पहले रोड्स तो अच्छे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो फिर ये चलान अच्छा भी लगेगा घर पे पहुँचते हुए। और पूरी दुनिया में इसी तरह होता है, मगर इसको प्रॉपर एक चीज़ बने ना, कुछ लोगों को पहुँचे, कुछ को ना पहुँचे, 2 आदमियों को पहुँचे, 3 को नहीं पहुँचे, ये सब चीज़ें सब पर अप्लाई होनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त से ई चालानिंग का अमल शुरू हो जाएगा। कैमरामैन राना जानजेब के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। अब आपको बताएं, मुल्क में पहली बार टीचर्स लाइसेंस का इजरा हो गया। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में टीचिंग लाइसेंस तकसीम किए। वज़ीर ने कहा कि सिंध को मेयारी असातिज़ा की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आइंदा नस्लों की जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करना है। तालीम का बजट बढ़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मजीद क्या कहा, ये सुनवाता है। कोशिश यही रहेगी कि हम बेहतर टीचर्स प्रोड्यूस कर सकें, और ये इदारा जो हमने एक कानूनी इदारा बनाया है उसका यही काम है। आपकी आज कामयाबी तो वही है, लेकिन शाह साहब और आपकी सारी टीम को मैं कहूँगा कि इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। वेलकम किया, एक नया इनिशिएटिव था, और जैसे बताया गया कि लाइसेंसेस हमने देने हैं उन लोगों को जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को तैयार करेंगे, इस मुल्क के मुस्तकबिल के मेमारों को तैयार करेंगे। शहर कायद में फिर पानी का बड़ा बहरान। धाबीची सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम का आगाज हो गया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से मरम्मती काम शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। शहर को 85 मिलियन गैलन पानी की कमी मुतवक्के है। लांठी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम, DHA और नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तफसील इस रिपोर्ट में। बंद नल, खुश्क, इंतजामिया खामोश। जब धाबेजी सो जाता है तो कराची जागता है पानी के इंतजार में। के इलेक्ट्रिक की जानिब से धाबेजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मेंटेनेंस। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन बंद होने से शहर के बड़े इलाके मुतासिर। लांडी, कोरंगी, मलीर, बिन कासिम, DHA और नॉर्थ नाज़िमाबाद के शहरी शदीद परेशान। लांडी 4 और 6 नंबर समेत दीगर इलाकों के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कहते हैं पहले ही हालत खराब थी, अब मसाइल और बढ़ जाएंगे। ये पूरे इलाके में पानी नहीं है, चौकोर इलाके में हम लोग इतना परेशान हैं। ये लाइनें डली, इसमें भी कोई पानी वानी नहीं है। पास पैसे होते हैं, टैंकर डलवा लेता, हम जैसे गरीब कहाँ से डलवाएं? तभी हम लोग तो इधर ही आके बिलोच पाड़े जाके 6 नंबर जाके इधर से पानी लेके आते हैं, अपने बच्चों का पूरा कर रहे हैं। खवातीन बोली इस उम्र में पानी के भारी गैलन भर भर कर लाने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई मुतबादिल बंदोबस्त नजर नहीं आ रहा। समझ नहीं आता कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। अब बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, अब कैसे भरें? एक बूढ़ी औरत भर के रोज लेके जाती है, मुझे उनका देख के इतना बुरा लगता है। उठता नहीं बेचारी, रख रख कर। ये आलम है यहाँ का कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। 6 नंबर से कोरंगी से मंगाना पड़ता है खारी पानी, तो उधर से मंगाते हैं, खारी पानी भी नहीं मिलता है। इतने अहले मोहल्ला जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, मगर सुनवाई कुछ भी नहीं है। 2 इशू बताता है, 12 से 3 हमारी जो है ना वो पंपिंग का टाइम है। कहते हैं कि लोड शेडिंग हो जाती है, 1:30 बजे लाइट आती है, सिर्फ पौन घंटा वहाँ से पंप होता है हमारा पानी। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि ढाबेजी पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। शहर को पानी की फराहमी में 85 मिलियन गैलन की कमी मुतवक्के है। आज का जो इलेक्ट्रिकल ये जो मेंटेनेंस का काम है, इसकी वजह से 85 मिलियन गैलन जो है कमी होगी शहर के अंदर पानी की। जो टोटल फराहमी धाबेजी से होती है उसमें से जो कमी होगी वो तकरीबन ये 85 मिलियन गैलन होगी। शहरी कहते हैं पानी हर इंसान का बुनियादी हक है और इस हक को पहुंचाना सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि पूरे निजाम की जिम्मेदारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।